आप डिसाइड, आप तैयार हो तो आप भी परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा है, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। ओके मैम। जब हम इनिशिएट करते हैं ना खुद से, तो हमें फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगता है कि या वी कैन स्टार्ट, हम लोग भी शुरू कर सकते हैं, है ना। यस। लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। मैम कैमरा ऑन करना पड़ेगा? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कर लीजिए, अच्छा है। थोड़ा सा हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी काम कर लेते हैं ना फिर। ओके। ओके मैम। गुड इवनिंग मैम। स्टार्ट करूँ मैम? Good evening, ma'am. First of all, thank you so much to provide me this opportunity to perform here. Now, let me introduce myself. My name is Anjali Jangrila. I am from Chinwara, Madhya Pradesh. I am 26 years old. I have completed my schooling from Sankat Mochan Saraswati Higher Secondary School, Chinwara. I am postgraduate. I am a teacher by profession. I teach mathematics. My parents, sorry, ma'am. My कंटिन्यू। father, my father, Mr. Rajesh Rangila, is a mechanic, and my mother, Mrs. Jyoti Rangila, is a homemaker and a caring woman. Besides my parents, I had two siblings. I had an elder sister and a younger brother. My sister got married, and my brother is pursuing MA. My hobbies are singing, reading, playing with children, and listening music. Apart from singing, I love dancing. It keeps me fit. So that's all about me. Thanks to listen to me carefully. Very nice. See, in one time only you have spoken such in a nice way. Very good. Good try. Very Thank you, nice. ma'am. Okay, next we have Manoj. Manoj, are you ready to give introduction? Yeah, sure, ma'am. Yeah, let's begin. Okay, good evening, ma'am. Thanks for shortlisting me for this interview. Now, I would like to start my introduce. I am Manoj Kumar. I am native of district Hapur, but for time being, I live at Lalkua, district Ghaziabad. As far as my qualification is concerned, I have attended the University of Meerut, that is CCS University. From this, I have completed BCA. And as far as my work experience is concerned, uh, I I have worked past 1.5 year in EXL Services Private Limited, and then I I am currently working in Pacific in US healthcare process. And as far as my personality traits are concerned, I am a good team player, and I have very good uh, I have very good time management skills. I have, and as far as my hobbies, I enjoy morning walk to keep myself fit. When I get time, I enjoy farming with my father. That's all about myself. Thank you. Nice. So you have prepared this introduction for interview, right? Yes, ma'am. Very nice, very nice. It is very good. And words are also very nice. Correct? And Yeah, ma'am. I just want you to record your introduction. Can you record with your, you just record and send it to my personal number now? Okay? Yes, ma'am.
that means actually it is okay, like you have spoken, but I want you to give you some, when you send the recording, I would like to give you some feedback, some review about it. Okay? ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ठीक है. Thank you. Hi, Sadhna ma. You just send me tomorrow, as it is Sunday tomorrow. I hope you can send, right? Just send me. Okay. Okay. Bye. Okay, no problem. Okay. Yeah, Sadhna ma'am. Are you ready? We are ma'am. doing Good evening. introduction. Good evening, ma'am. We are Ma'am, doing introduction actually, and in which, yes, ma'am. मैम फीवर है इसलिए मैं सिर्फ लेटे लेटे बात कर पा रही हूँ. Oh my God, please take care of yourself. मैम मतलब मुझे अब याद आया, बेटे ने बताया क्लास है तो मैं बस आपको देख रही हूँ बस मैम. कोई बात नहीं. You can speak introduction in the next class. No problem. Okay. मैम. Nice. But I appreciate your efforts कि आप class attend कर रहे हैं. That is a lot actually. Very nice. चलिए. But just take care of yourself because this is time of, you know, fever, then viral fever, और थोड़ा बहुत जुकाम सर्दी, उससे भी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि पूरा शरीर जो है उसमें फीवर आ गया है, राइट? प्लीज टेक केयर ऑफ हाँ मैम. योरसेल्फ. यस मैम, प्लीज. ओके. जी. So today we'll start with, first of all I would like to appreciate both the introductions and it seems sexy. देखो क्या होता है कि जब आप लोग है ना एक लेवल पर होते हो जहां पर लगता है कि आप लोग क्या करोगे, आपका कहाँ से शुरू करना चाहिए कोर्स, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप, क्या होता है हर एक कोर्स जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन कोर्स को बच्चों के हिसाब से, जो स्टूडेंट्स होते हैं आप लोग जो हैं उनके हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करते रहते हैं. मॉडिफिकेशन से हमारा मतलब है कि जैसा स्टूडेंट की नीड है या जिस लेवल के स्टूडेंट है उस लेवल के हिसाब से हम लोग अपने बेसिक कोर्स को मॉडिफाई करते हैं, राइट? तो अभी आपके इंट्रोडक्शन से तो ये लगता है कि आप लोग जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल तक आप लोग चीजों को सीख सकते हैं. यू हैव गुड ग्रास्पिंग स्किल, ग्रास्पिंग पावर. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा बेसिक से करना है, लेकिन हाँ स्पोकन इंग्लिश है तो थोड़ा सा कुछ चीजें आपके साथ बेसिक की भी चालू रहेंगी. मतलब जो कह सकते हैं कि ज्यादा बेसिक नहीं रहेगा, पर फिर भी एक ऐसा लेवल रहेगा जहां पे आप तीनों अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है? बट आई वांट टू टेल यू कि आपका इंट्रोडक्शन जिस हिसाब से आपने दिया है इट्स रियली वंडरफुल, अप्रिशिएबल, बहुत अच्छी बात है. I appreciate your Thank you. efforts, guys. Thank you. है ना? अब जब मनोज मुझे अपना इंट्रोडक्शन भेजेंगे तो थोड़ा सा और उन्हें मैं चीजें बताऊंगी. और जहां तक बात रही अंजलि की, तो क्योंकि इंट्रोडक्शन बिल्कुल वही था जो हम लोगों ने सीखा था, तो उसमें ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है. एंड जो भी आपने इंट्रोडक्शन दिया है दैट इज वेरी वेरी गुड, अच्छा है, राइट? एक जनरल जो इंट्रोडक्शन होता है दैट इज वेरी गुड, राइट? और क्योंकि मनोज का इंट्रोडक्शन है जो अलग है, जो कि मैंने नहीं दिया था, तो मैं थोड़ा सा उन्हें और सुनूंगी और कुछ अगर अच्छी चीजें हम इसमें ऐड कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है. फिर आगे जाके हम लोग भी ऐसे इंट्रोडक्शन पर काम करेंगे. इसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन फॉर इंटरव्यू, लेकिन क्योंकि वो मनोज ने खुद से तैयार किया है तो बहुत अच्छी बात है. हम लोग इसको अपने कुछ दिनों के बाद कुछ तरीकों से हम लोग इसको और चालू करेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स बिगिन द क्लास टुडे विद सेकेंड टॉपिक, जो कि है हमारा कॉन्वर्जेशन, राइट? अब कॉन्वर्जेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिनमें से एक तरीका होता है टू मीट एनी अननोन पर्सन एंड गिविंग योर इंट्रोडक्शन. किसी अननोन पर्सन से मिलकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देना इज वन ऑफ द कॉन्वर्जेशन. कॉन्वर्जेशन बातचीत के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. इट कुड बी, ये हो सकता है आपका तरीका जहां पर आप बात करोगे, यू हैव गॉन टू मार्केट, शॉपिंग से रिलेटेड बात हो सकती है आपकी, और एल्स यू हैव मेट विद योर फ्रेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, या फिर आप किसी रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर किसी स्ट्रेंजर से मिले हैं और वो आप ही की उम्र के हैं या थोड़े बड़े हैं आपसे, और आप लोगों ने बातचीत करना शुरू किया है. नाउ दैट बातचीत इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्वर्जेशन बिटवीन स्ट्रेंजर्स, ठीक है? कॉन्वर्जेशन बिटवीन
स्ट्रेंजर्स, राइट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वील स्टार्ट विद कॉन्वर्जेशन में सबसे पहले तो हाय हेलो जो होता है कॉमन वही है, लेकिन जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो आप हाउ आर यू ना बोलें, क्योंकि आप भी उनको नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानते, बस आप हाय हेलो से शुरू करें। और इसके अलावा हम और क्या क्या बोल सकते हैं, तो मैं आपको फाइल दिखा रही हूँ, और उस फाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको वो पूरी फाइल के क्वेश्चंस 1 बाय 1 नोट करने हैं। हम आज करेंगे टोटल 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट? फिर मैं ये शीट आपको भेज भी दूंगी, इट्स नॉट लाइक दिस कि नहीं भेजूंगी, बट बिफोर सेंडिंग यू दिस आई वांट कि आप लोग वो क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट करने के बाद उसे प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा सा उसे नोट डाउन करेंगे मेरे साथ में, और बोलते भी जाएंगे और नोट डाउन भी करेंगे, मतलब बोलना भी सीखते जाएंगे, नोट डाउन भी करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, वी गॉट द फाइल। तो शुरू करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यस, दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रेंजर वाला इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम द नेम। किसी से जब किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं और बोलना है कि हम बोलते हैं कि What's your name? व्हाट्स योर नेम, विच इज अ कॉमन वे ऑफ सेइंग व्हाट्स योर नेम, राइट? अब बोलना है कि कोई और तरीका है इसको कहने का? यस, देयर इज, वी कैन से मे आई नो योर नेम। ये थोड़ा सा और रिस्पेक्टिव वे है और फॉर्मल वे है, मे आई नो योर नेम, राइट? ठीक है, कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, है ना? दिस इज अनदर वे। और आंसर कैसा होगा इसका? आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, बिल्कुल, सर्टेनली, या ऑफ कोर्स कह सकते हैं, माय नेम इज राहुल शर्मा। दिस इज, दिस इज, राइट? अब दिस इज खुशबू तोमर, है ना? आई एम खुशबू तोमर, राइट? ऐसे बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स आई एम खुशबू तोमर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दैट श्योर दिस इज खुशबू तोमर। ऐसे भी बोल सकते हैं माय नेम इज खुशबू तोमर। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक सर्टेनली क्यों लगाया है, ऑफ कोर्स क्यों लगाया है? दीज आर इंग्लिश फिलर्स। कभी कभी आपने देखा होगा, आप लोग या कोई जनरली, जब हम एकदम नए स्पीकर्स होते हैं तो हम बीच बीच में बहुत सारे गैप्स ले लेते हैं। सच गैप्स actually in language we need to fill those gaps, right? तो उसको फिल करने का क्या तरीका होता है? तरीका ये है कि आपको वो कुछ फिलर लगा के बोलना होता है। अब जब आप सोच रहे हो ना, 1 सेकेंड भी सोच रहे हो, तब तक सोचने की वजह ऐसा बोल दीजिए, सर्टेनली आई एम खुशबू तोमर, या ऑफ कोर्स माय नेम इज खुशबू तोमर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट? समझ रहे हैं? तो ये फिलर हो गया एक तरीके का। माय नेम इज खुशबू तोमर। कभी कभी होता है हम एकदम से नहीं बोल पाते हैं, और अगर बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिलर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं बोल रहे हैं तो प्लीज पुट द फिलर ऑन, ठीक है? अब एक और तरीका हो गया, कैन आई नो योर नेम, कैन आई नो योर नेम, कुड आई नो योर नेम। सारी चीजों को कहते हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। और मे, कैन, कुड, सब कुछ रिक्वेस्ट के पर्पज से यूज होता है। रिक्वेस्ट बोले तो मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। हो सकता है आप ये सोचे कि मैम ये इतने सारे तरीके क्यों हैं? क्योंकि जब हम बेसिक इंग्लिश में होते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो हम जब जानने लगते हैं इंग्लिश को तो हम कह सकते हैं मे आई नो योर नेम। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैन आई नो योर नेम। थोड़ा और एडवांस वर्जन क्वेश्चन का बन जाता है, और हम सिंपल आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम फिलर्स का यूज करके भी आंसर दें, बहुत अच्छा लगता है। श्योर माय नेम इज खुशबू, श्योर आई एम खुशबू, अच्छा लगता है। इट लुक्स दैट यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ स्पीकिंग। तो ये तरीका है क्या पूछने का, नेम पूछने का, ठीक है? आई होप आपने लिख लिए होंगे तीनों तरीके। आपको आंसर लिखना है तो आप आंसर लिख सकते हो, अपना नाम लिखेंगे,
ताकि आपसे जब कोई ये चीज पूछे तो यू शुड बी एबल टू टेल योर नेम, व्हाट्स योर नेम, और मे आई नो योर नेम, ओके, और कैन आई नो योर नेम, और कुड आई नो योर नेम। सबका एक ही मीनिंग है, मे, कैन, कुड, सब कुछ रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। मे हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मे आई कम इन मैम, राइट, बच्चों को सिखाते हैं मे आई कम इन मैम, दैट वन। ओके, नाउ लेट्स मूव, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। आगे बढ़ूं, शुड आई मूव, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं किसी से, इफ यू फील द पर्सन इज यंग लाइक यू, इफ यू फील द पर्सन इज, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी यंग दिख रहा है, अभी भी पढ़ाई खत्म की होगी, इन दैट वे यू कैन आस्क एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप पूछ सकते हैं व्हाट्स योर एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, व्हाट्स योर एजुकेशन। यू कैन ऑल्सो आस्क could I know your education, देखो वो could I know your name से could I know your education भी आ सकता है, क्या मैं आपकी एजुकेशन जान सकती हूँ, जान सकता हूँ, any gender, right? Why not? My educational qualification is BE, Bachelor of Engineering। आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं, जैसे मेरी तो BE नहीं है, I can say why not? My qualification is MA। I can also say I am MA। I am MA means I am Masters of Arts, right? ऐसे कह सकते हैं। फिर आ जाएंगे, ऐसे भी पूछ सकते हैं, आप क्या कर रहे हो, अभी क्या पढ़ रहे हो, तो उसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, What are you pursuing or studying? Do you remember pursuing word मैंने कहा था, कुछ भी हासिल करना हो तो pursue word यूज करते हैं, कुछ भी यूज करना हो तो pursue में वो यूज कर pursue वर्ड यूज करते हैं, pursuing उसका ing फॉर्म है। What are you pursuing? अब क्या हासिल कर रहे हो, अब हिंदी में ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं सही है कि क्या कर रहे हो, कौन सी डिग्री कर रहे हो, डायरेक्ट पूछ लो What degree are you doing, और ऐसे भी बोल सकते हैं What are you pursuing? What degree are you pursuing भी बोल सकते हैं, ठीक है। What are you studying? I am studying BE और I am pursuing BE। जब जब आपको लगे कि उसकी तो एज नहीं लगती है कि वो कुछ कर रहा होगा, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, ऊपर वाला पूछ लीजिए, क्योंकि MA BA BE ये सब तो क्वालिफिकेशंस हमेशा आपने कर लिया है तो आपके साथ है, कुछ भी पूछें। फिर आपको लगता है कोई कोई कॉलेज गोइंग गर्ल है, बॉय है, स्कूल गोइंग है, तो उससे पूछ सकते हैं विच क्लास आर यू इन, विच ईयर आर यू इन, विच सेमेस्टर आर यू इन, है ना, वो बोलेगा आई एम इन थर्ड सेमेस्टर, आई एम इन थर्ड सेमेस्टर, या फिर वो अपने हिसाब से बोल देगा। लेकिन आपको लगता है, जैसे मनोज ने अभी कहा कि ही इज अ वर्किंग, वो काम करते हैं, वो जॉब पर जाते हैं, मतलब वो स्टूडेंट नहीं है, ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो अब आप उनसे ये नहीं पूछेंगे विच ईयर आर यू इन, अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन ही विल आंसर यू। फिर आप उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आप अब क्या कर रहे हो, ये पूछ सकते हैं आर यू डूइंग अ जॉब, राइट। तो जॉब वाला क्वेश्चन मैंने नीचे डाला हुआ है, सो डोंट वरी, वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर व्हाट यू आर डूइंग, what course you are doing, or what are you, what is your education qualification, आपको क्या करना है, कॉलेज स्कूल पूछ लीजिए, which college और स्कूल, अल्मा मैटर का मतलब होता है स्कूल, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है, ब्रिटिश में लंदन में लोग अल्मा मैटर स्कूल को ही बोलते हैं, यूरोप में यूनिवर्सिटी आर यू इन। अब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में है तो बोलेंगे आई एम इन दिस यूनिवर्सिटी, राइट। लेकिन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप भी बोलेंगे आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स और माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, ठीक है। भोपाल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। आपको लगता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी या कॉलेज बता दीजिए, क्योंकि आप कर चुके हो, आप अभी करते नहीं हो। लेकिन किसी को देख के जब आपको पता है कि अब वो भाई कुछ कर रहा है तो उससे पूछ सकते हैं वो विच यूनिवर्सिटी आर यू इन,
तो वो आपको बता देगा, मस्ट भी आपसे छोटा होगा इसलिए, राइट, तो वो ये बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन सिचुएशनल है। मैं जो जो क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, वो जरूरी नहीं कि सब आप यूज करें, हमें वो यूज करना है विच वी नीड इन आवर कॉन्वर्सेशन। ओके, नेक्स्ट, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट या तो पहले वाला जो हमने लिया था वो पूछ लीजिए, या फिर पूछ लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अभी है। अभी वाले से अभी पूछ लीजिए, व्हाट्स योर ब्रांच, व्हाट्स योर स्ट्रीम, व्हाट्स योर सब्जेक्ट। आंसर दीजिए। माय ब्रांच इज इंग्लिश, माय ब्रांच इज commerce. You can also say my stream is, stream, branch, same words हैं। ओके, आप ये भी बोल सकते हैं, मान लीजिए अब तो आप स्कूल में है नहीं, कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, फिर आप ये भी बोल सकते हैं, my branch was arts, या psychology or science, or it was BZC, ओके, बॉटनी, zoology एंड केमिस्ट्री, जो भी आपकी ब्रांच हो। अगर आप जानते हैं इंजीनियरिंग में ऑफ कोर्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, HR, नहीं, what do you call it, IT, communication, what do you call it, IT, right? So information technology, yes, है ना। और दो तीन ब्रांच और होती हैं, सिविल होती है, देन वी हैव मैकेनिकल एंड देन सम अदर, अभी तो और ब्रांचेस भी आ गई हैं। तो आपकी जो ब्रांच थी आप वो मेंशन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपकी ब्रांच अभी कुछ है तो वो बता सकते हैं। कई बार हम किसी से ऐसे भी पूछते हैं कि कौन सी ब्रांच ली है आपने, सपोज यू हैव मेट विद योर कजन, और आपके कजिन ने क्या किया है, अभी अभी छोटा है आपसे, अभी अभी कोई ब्रांच ली है, कोई ब्रांच ऑप्टेड की है, तो आप उससे पूछ सकते हैं विच सब्जेक्ट हैव यू ऑप्टेड फॉर। ऑप्टेड फॉर का मतलब होता है सिलेक्टेड, मैंने दूसरा वर्ड भी लिखा हुआ है। आप कह सकते हैं आई हैव ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, EC। आप ये भी बोल सकते हैं, अभी किसी हो सकता है आपका कजिन ने अभी अभी जूनियर कॉलेज लिया हो, 11th एंड 12th, राइट, आप उससे, वो आपको बोलेगा आई हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स प्लस मैथ, राइट। You can also say what have you opted for, वो आपको बता सकता है I have opted for arts, जो भी है। opted का मतलब ही होता है selected, right? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, let's just move next। अब हम बात करेंगे, we'll talk about which subject are you going to, yes yes, अब यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको कि अगर किसी से पूछना हो कि कौन सा सब्जेक्ट लोगे तो ऐसे भी बोल सकते हो, which subject are you going to opt for, आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। गोइंग टू मतलब वाले हो, लेने वाले हो, तो कोई जवाब देगा आपको आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर EC, लेने वाली हूँ EC, राइट। अच्छा, लास्ट ईयर आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, इस ईयर कौन सा लिया है, विच एग्जाम आपने कौन सा एग्जाम दिया है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर you can put here. So which exam have you taken this year, or you can also say which which course have you done this year। ये सब तरीके हैं अलग अलग, आपको जो ज्यादा ठीक लगता है, जो आपको आपके हिसाब से फिट लगता है, आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने नेम के बारे में पूछ लिया है, राइट, आई होप आपने ये नोट किया होगा। फिर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, आप चाहें तो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो भी नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम यू हर्ड इट, इससे पहले आपने उसे यूज नहीं किया, वही क्वेश्चन लिख लीजिए, उसका आंसर भी लिख लीजिए। अगर पहले से जानते हैं, पता है, तो फिर नो नीड टू राइट इट। सेम विथ कॉलेज एंड स्कूल ऑल्सो, जैसे अल्मा मैटर न्यू वर्ड है आपके लिए, सब्जेक्ट, राइट, ऑप्टेड फॉर न्यू वर्ड है। Then we have going to, going to is also a new word for you, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में gonna भी कहते हैं, है ना। Which subject are you gonna opt for, अब gonna क्यों बोलते हैं, फ्लुएंसी के लिए, राइट। ये रॉन्ग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये राइटिंग में यूज नहीं होता, इट इज ओनली फॉर राइट स्पीकिंग, राइट। अच्छा, नेक्स्ट एक करियर ऑब्जेक्टिव। अब आपको लग रहा है कोई ऑलरेडी अच्छा खासा सेटल्ड है, उसका अपना करियर है, तो उससे ये क्वेश्चन आप अलग तरीके से पूछेंगे। लेकिन जिसके ऑलरेडी कोई यंग है और अभी भी करियर ऑब्टेन ही कर रहे हैं, अभी सेट हो रहा है, तो पूछ सकते हैं व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव,
या उसका आंसर होगा माय करियर ऑब्जेक्टिव इज टू बी अ सक्सेसफुल इंजीनियर। What do you want to become? Want to को wanna भी कहते हैं। I want to become or I wanna become a doctor. What do you aspire to be? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरा तो करियर चलिए टीचिंग में बन गया है and I am very happy about it, लेकिन कभी कभी मुझ में और भी कई महत्वाकांक्षाएं हैं। You know, I have many other things which I want to finish. तो फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ। आप मुझसे पूछेंगे ना what are you aspire to be, क्या करना चाहते हैं, किस चीज की इच्छा रखते हैं आप, किस चीज की इच्छा रखते हैं, क्या इच्छा है आपकी जो करियर के बाद भी पूरी नहीं हुई हो, मतलब कुछ और है क्या। I aspire to be a very knowledgeable teacher. टीचर तो हूँ, पर लगता है और नॉलेज होना चाहिए चीजों का। मुझे ऐसा लगता है कि कई वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं पता है या मुझे एकदम से यूज नहीं होते हैं। आई वॉन्ट टू गेन दैट नॉलेज, आई एस्पायर टू गेट दैट नॉलेज, राइट। तो यहाँ पे एस्पायर का मतलब है आप किस चीज की इच्छा रखते हो, महत्वाकांक्षा रखते हो, ये वहां पे वो वर्ड आपको सूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हमारी ताकत। तो हम स्ट्रेंथ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरी ताकत क्या है। नाउ वी हैव टू स्ट्रेंथ, हमारे पास दो स्ट्रेंथ होती है। एक होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, हम बहुत ताकतवर हैं या हम वीक हैं फिजिकली। दूसरी होती है मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ में कौन सी चीजें आती हैं, वो चीजें जो हमने अपने अंदर या तो डेवलप की हैं या वो पहले से थी और हमें ये पता चला है। जैसे my strength is that I am a confident person. कई लोग होते हैं ना जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो मुझे पता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो एक वो मेरी स्ट्रेंथ हो गई। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा खुद 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 ही अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। आई एम अ सेल्फ ड्रिवन पर्सन। सेल्फ ड्रिवन। कई लोग कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, खुश मिजाज हूँ। आई एम वेरी हैप्पी चीयरफुल पर्सन। कई लोग कहते हैं मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव करता हूँ, हमेशा सोचता भी हूँ। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड अ डूअर, राइट। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं मैं तो अपने आप को, मुझे लगता है कि मैं जल्दी कोई भी चीज सीख जाता हूँ। आई एम अ क्विक लर्नर। आई एम अ क्विक लर्नर। आई एम अ क्विक लर्नर, राइट। क्विक लर्नर वो जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल, आई एम गुड, लेकिन गुड इज नॉट द क्वालिटी विच वी जज। गुड तो अच्छे तो सभी होते हैं, है ना, बुरा कोई नहीं होता। तो हम वो क्वालिटीज बताएंगे जो हमें लगता है कि हमारे अंदर है और ये हमारी हेल्प करते हैं हमको प्रेजेंट करने में। जैसे मैं बहुत मेहनती हूँ, क्या बोलेंगे, मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं मेहनती हूँ या बहुत मेहनती हूँ, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। I am hard worker. hard working. आई एम हार्ड वर्किंग, राइट। हार्ड वर्कर जो है, वर्कर एक अलग वर्ड है और हार्ड वर्किंग पर्सन अलग है। ठीक है, सो आई एम हार्ड वर्किंग। कई लोग बोलते हैं कि मैं, है ना, एकदम, क्या बोलेंगे, तो मैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें करने की इच्छा है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में। तो कैसे बोलेंगे ऐसे लोगों को जो बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, बहुत सारी महत्वाकांक्षा है उसके अंदर कैसे बोलेंगे। आई एम आई एम आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, क्या बोलेंगे, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। एम्बिशियस, आप सोच रहे होंगे ये सब वर्ड्स हमें कैसे याद होंगे। डोंट वरी, मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है इन वर्ड्स की, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ में है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसमें से वो मीनिंग्स पढ़िएगा और आपके ऊपर जो भी मीनिंग सेट होते हैं, आप अपने लिए कोई भी 5 मीनिंग्स, कोई भी 5 क्वालिटीज आप अपने लिए सेव कर सकते हैं, अपने पास में ढूंढ के सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब केवल फिजिकल ताकत से नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब है हमारी कुछ ऐसी योग्यताएं जो हमें सफल होने में मदद करती हैं, हमारा कुछ ऐसा नेचर जो अंदर है और हमारी हेल्प करता है हमें कुछ करने में, राइट। तो ये आपको यहाँ तक स्ट्रेंथ तक आ गया। क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। what are your strengths or soft skills or qualities or personality traits? सबका एक मीनिंग है, आपके गुण क्या हैं, अच्छे गुण क्या हैं। तो यहाँ पर जवाब होगा
माई स्ट्रेंथ इज, एक है तो बोलेंगे माई ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक, इट इज द वर्ड फॉर पॉजिटिव। माई स्ट्रेंथ इज माई पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे भी बोल सकते हैं, माई स्ट्रेंथ्स आर आई एम कॉन्फिडेंट, सेल्फ ड्रिवन एंड हेल्पफुल। 3 क्वालिटीज हो गई। आप अपनी क्वालिटीज अपने मन से अगर आपको पहले से पता है तो भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ तक हम लोगों ने आज समझा हुआ है, राइट। ये वो चीजें होती हैं, शुरुआत की 5 चीजें हैं जो हमें हेल्प करती है किसी पर्सन को समझने में, और किसी पर्सन को हेल्प करती है हमें समझने में, हमारी क्वालिफिकेशन समझने में, राइट। अब आप लोग क्लास में दूसरी लिंक आपको शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये